Hello everyone, I am Dr. Nupur and in this video we are going to study in detail about chemiosmotic hypothesis. देखिए chemiosmotic hypothesis किसने दिया था? It was given by Peter Mitchell. In order to understand the mechanism of synthesis of ATP during the process of photosynthesis and respiration. Synthesis of ATP को हम क्या कहते हैं? We call it as phosphorylation. फॉस्फोराइलेशन टेक्निकली अगर हम देखें तो इट इज़ द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, लेकिन जो ATP बनता है ATP इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ATP का बनना भी एक तरीके से क्या है? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन ही है। नाउ फॉस्फोराइलेशन जो होगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. First is the photophosphorylation and the second one is oxidative phosphorylation. Clear? Phosphorylation means synthesis of ATP in the presence of light. That is known as photophosphorylation and it occurs during photosynthesis. तो photosynthesis के दौरान जो ATP बनता है that is known as photophosphorylation. And oxidative phosphorylation कब देखने को मिलेगा? It occurs during the respiration. रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉस्फोराइलेशन और सिंथेसिस ऑफ ATP अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो हमने क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ ATP इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन. इट अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ATP बनता है इट इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड दिस इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. Whereas during respiration it occurs in the mitochondria in the presence of oxygen and that is referred to as the oxidative phosphorylation. तो ये जो chemiosmotic hypothesis है it was given by Peter Mitchell in order to understand the mechanism of synthesis of ATP during photosynthesis, that is by photophosphorylation, and during respiration by oxidative phosphorylation. Now इसका जो basis है that is the development of proton gradient across the membrane. अब proton gradient क्या है? It is the difference in the concentration of the proton across the membrane. जब हम बात कर रहे हैं photosynthesis की then the proton gradient is developed across the thylakoid membrane. But when we are talking about respiration, then proton gradient for the process of oxidative phosphorylation will be developed across inner mitochondrial membrane. क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा? सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन. During photosynthesis it is referred as photophosphorylation and during respiration it is referred as oxidative phosphorylation. Now what is the basis of phosphorylation? That is the development of the proton gradient, that is the difference in the concentration of the protons across the membrane. If we are talking about photosynthesis then the proton gradient develops across the thylakoid membrane. But if we talk about the respiration then the proton gradient develops across the inner mitochondrial membrane. Now let us understand the concept of chemiosmotic hypothesis with the help of a diagram. आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने thylakoid का डायग्राम ड्रॉ करा है. दिस इज अ सिंगल थाइलेकॉइड.
ये थाइलेकॉइड जो होगा ये कैसा होता है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है टू दैट ऑफ अ रबर ट्यूब. Okay, now what happens, as we know that non-cyclic photophosphorylation takes place in the thylakoid membrane. Thylakoid की membrane में चलता है, and we have already studied about the non-cyclic photophosphorylation in our previous lectures. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो components हैं non-cyclic photophosphorylation के, they are present in the thylakoid membrane. As you can see here, there is present photosystem 2. फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है, इट अब्सॉर्ब्स द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर. नाउ व्हेनेवर द लाइट फॉल्स ऑन इट, द इलेक्ट्रॉन्स आर फोटो एक्साइटेड. जब इलेक्ट्रॉन्स का फोटो एक्साइटेशन होता है, दे आर इजेक्टेड आउट एंड दे आर एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2, दैट इज फियोफाइटिन. फियोफाइटिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल किसके जैसा होता है, क्लोरोफिल के जैसा, मगर इट लैक्स मैग्नीशियम. नाउ फियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी पास टू प्लास्टोक्विनॉन. प्लास्टोक्विनॉन जो है, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट इट इज अ हाइड्रोजन कैरियर. तो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में तो हेल्प करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम इट विल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन. अब फियोफाइटिन तो इसे इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता. तो हाइड्रोजन आयन कौन देगा इसे, इट विल बी टेकन अप बाय द स्ट्रोमा. क्लियर. नाउ दिस प्लास्टोक्विनॉन गेट्स reduced into the PQH2. Now what happens, as it transfers the electron to cytochrome B6F complex, which is the next electron carrier. Now ये क्या करेगा, ये केवल इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो इसके पास जो प्रोटॉन है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड और रिलीज्ड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड. Clear? And it gets again oxidized to the PQ form. Now what happens? From cytochrome B6F complex, the electron is transferred to plastocyanin. Plastocyanin is present towards the inner side of the thylakoid membrane, and it has the ability to move within the thylakoid membrane. तो यहाँ पर जो प्लास्टोक्विनॉन है और प्लास्टोक्यानिन है, they are the mobile carriers. So we'll write here plastoquinone and plastocyanin are mobile carriers. Clear? Now plastocyanin is blue colored copper containing pigment from which the electron is transferred to photosystem 1. What is the reaction center in photosystem 1? It is P700. यानी कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर, दैट विल अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर. सो जब ये अब्सॉर्ब करता है लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, देन अगेन द इलेक्ट्रॉन्स आर फोटो एक्साइटेड एंड इजेक्टेड आउट, एंड दे विल बी एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1. और वो क्या होता है, दैट इज फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जिससे इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसफर होंगे टू फेरेडॉक्सिन. अब फेरेडॉक्सिन कहाँ लोकेटेड होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड इट इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 1, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे टू FNR. FNR क्या है, इट इज द फेरेडॉक्सिन NADP reductase. Now FNR will accept 2 electrons and 2 protons. Clear? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये किससे लेगा, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरेडॉक्सिन, एंड 2 प्रोटॉन्स कहाँ से लेता है, फ्रॉम द स्ट्रोमा. नाउ इट विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन टू NADP, which gets reduced to form NADPH. क्लियर. NADP जो है केवल एक ही प्रोटॉन लेता है, तो दूसरा जो प्रोटॉन होगा वो SH समअप हम कर सकते हैं. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, NADP प्लस गेट्स reduced to NADPH डॉट H प्लस. आई होप इट्स क्लियर. तो ये जो है
दिस इज द बेसिक अबाउट द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब एक चीज और आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये तो एक बार हुआ है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हुआ है तो PS2 यानी फोटो सिस्टम 2 जो है यहाँ पर एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है, एक गैप क्रिएट हो गया है बिकॉज ऑफ द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको कौन फुलफिल करता है? इट इज फुलफिल्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मौजूद होता है एसोसिएटेड विद द PS2 देयर इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ लोकेटेड होगा? टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड इट इज एसोसिएटेड विद PS2। अगर हम बात करें फेरेडॉक्सिन और FNR की तो दे आर एसोसिएटेड विद द PS1 and they are present on the outer side of the thylakoid membrane। अब यहाँ अगर हम देखें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स तो इधर क्या होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो एज ए रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होंगे? 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। Now because of the ejection of electrons from PS2 एक यहाँ पर गैप क्रिएट हो जाता है या डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। इसको कैसे फुलफिल करता है ये? बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर दे कम एंड फिल अप द गैप दैट इज क्रिएटेड इन द फोटो सिस्टम 2 ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ताकि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। नाउ नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। प्रोटॉन ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट हो रहा है आप देख सकते हैं। ओवरऑल इसमें 3 पॉइंट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला पॉइंट तो ये होगा कि यहाँ पर जब फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है टू साइटोक्रोम B6F थ्रू प्लास्टोक्विनॉन, तो प्लास्टोक्विनॉन जो है मेनली क्या है? हाइड्रोजन कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के साथ साथ ये प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है। अब ये प्रोटॉन कहाँ से लेता है? ये फ्रॉम द स्ट्रोमा। और ये प्रोटॉन फिर जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है तो ये प्रोटॉन तो लेगा नहीं, तो प्रोटॉन कहाँ रिलीज हो जाता है? टुवर्ड्स द थाइलेकॉइड ल्यूमेन। तो यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज हो गया। दूसरा अगर हम केस देखें, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू फोटो सिस्टम 1। व्हाट इज द रिएक्शन सेंटर इन फोटो सिस्टम 1? इट इज P700। यानी कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल A है रिएक्शन सेंटर दैट विल अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। सो जब ये अब्सॉर्ब करता है लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर देन अगेन द इलेक्ट्रॉन्स आर फोटो एक्साइटेड एंड इजेक्टेड आउट and they will be accepted by the primary electron acceptor of photosystem 1। और वो क्या होता है? that is ferredoxin reducing substance, जिससे इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसफर होंगे टू फेरेडॉक्सिन। अब फेरेडॉक्सिन कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड इट इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 1 एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे टू FNR। FNR क्या है? इट इज द फेरेडॉक्सिन NADP reductase। Now FNR will accept 2 electrons and 2 protons। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये किससे लेगा? फ्रॉम 2 molecules ऑफ फेरेडॉक्सिन एंड 2 प्रोटॉन्स कहाँ से लेता है? फ्रॉम द स्ट्रोमा। Now it will transfer the electrons and 1 proton to NADP which gets reduced to form NADPH। क्लियर? NADP जो है केवल एक ही प्रोटॉन लेता है, तो दूसरा जो प्रोटॉन होगा वो SH समअप हम कर सकते हैं। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? NADP प्लस गेट्स reduced to NADPH डॉट H प्लस। तो ये सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है विच इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये क्या शो करता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इस दौरान भी क्या रिलीज होते हैं? प्रोटॉन्स।
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ल्यूमेन के अंदर जो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी हाई. क्लियर? Where areas in the stroma the proton concentration is low. This sets up proton motive force or proton gradient that acts as driving force for synthesis of ATP. Clear? Now what happens? अपन जानते हैं रूल बनते किस लिए हैं? तोड़ने के लिए. तो यहाँ जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स बना है या जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, जब ये टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी जो है इट इज सफिशिएंट टू एक्टिवेट द एटीपी सिंथेज एंजाइम which is catalyzed to produce the ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. और इसी को हम क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो यहाँ पर मौजूद होता है F0 F1 particle and F1 consists of ATP synthase enzyme. क्लियर? तो जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, कब टूटेगा? जब ये प्रोटॉन्स जो हैं दे विल पास थ्रू दिस F0 F1 पार्टिकल बैक इनटू द स्ट्रोमा. क्लियर? उस टाइम पर क्या होगा? देयर विल अकर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और इसी को हम क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. F0 पार्टिकल आप देख सकते हैं, इट रिमेन्स एम्बेडेड इन द thylakoid membrane and it acts as transmembrane channel which helps in the facilitated diffusion of the protons across the membrane. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों बोला है? क्योंकि ये किसके थ्रू हो रहा है? ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल के थ्रू हो रहा है एंड इट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम द ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा. F1 पार्टिकल जो है आप देख सकते हैं, इट प्रोट्रूड्स टुवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ द thylakoid membrane facing the stroma. So that was about the F0 F1 particle. कौन सा एंजाइम मौजूद होता है F1 में? That is the ATP synthase that help in the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. So this is known as photophosphorylation. हम कह सकते हैं chemiosmosis requires, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं chemiosmosis की? सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट आता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा. सेकेंड आता है प्रोटॉन पंप जो कि प्रोटॉन के पंपिंग में हेल्प करेगा. थर्ड आता है प्रोटॉन ग्रेडियंट. जैसा कि अपन ने पढ़ा, प्रोटॉन ग्रेडियंट ही यहाँ किसकी तरह काम करेगा? मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसके अलावा एंजाइम चाहिए ATP सिंथेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. So that was all about the chemiosmotic hypothesis that was proposed by Peter Mitchell in order to understand the mechanism of ATP synthesis during photosynthesis and respiration. So basic जो mechanism है वो इसका सेम रहता है चाहे हम photosynthesis की बात करें चाहे respiration की.
डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताए हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर जब इसके थ्रू एटीपी का जनरेशन होगा तो हम उसको कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, और जब ये रेस्पिरेशन में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दोनों में ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो वहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल membrane. So this was the overall concept of chemiosmotic hypothesis that was proposed by Peter Mitchell. Here we have studied it in reference to photophosphorylation, जहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, यानी ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ कैसा pH होगा, देयर विल बी लो pH. Where areas in the stroma the proton concentration is low, तो यहाँ कैसा pH देखने को मिलेगा, high pH. And this proton motive force or the proton gradient act as a driving force for the generation of ATP, and this is referred to as the photophosphorylation.